Good morning, students. Am I audible? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So we have started with the chapter number 3. We will complete the few points and then later on we will going to see like who are all there to be added into the project group. Okay, so that we will going to see later on. Let me complete the few points first of all here. Okay. So as we have seen last time, what is mutual fund? Then again, bank assurance क्या होता है? What are the depository services? Okay. So now today we're going to see what is wealth management, portfolio management. Okay. So what is wealth management here? It is a high-level professional service that combines financial and investment advice, accounting and tax services, retirement planning, and legal or estate planning for one set free. Okay, one set fee. Okay. Clients work with a single wealth manager who coordinates input from financial expert and can include coordinating advice from the client's own attorney, accountant, and insurance agent. Some wealth managers also provide banking services or advise on philanthropic activities. It is an investment advisory discipline which incorporates financial planning, investment portfolio management, and a number of aggregated financial services. High net worth individual, small business owners, and the family who desire the assistance of a credentialed financial advisory specialist call upon wealth manager to coordinate retail banking, estate planning, legal resources, tax professional, and investment management. Wealth management combines both financial planning and the specialized financial services, including personal retail banking services, estate planning, legal and tax advice, and investment management services. The goal of wealth management is to sustain and grow long-term wealth. Private wealth management is an investment advisory practice that incorporates financial planning, portfolio management, and other aggregated financial services for private individual, not for the corporation, trust, group, or other type of a clients here. Okay. See here, in short, they are talking about the wealth management. See, everybody has a wealth with them, but they really don't know like how to manage it. Okay. तो इसके लिए किसको अपॉइंट किया जाता है? वेल्थ मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है. अभी ये वेल्थ मैनेजर मतलब ये कौन रहते हैं और ये कहाँ से आते हैं? So wealth managers will be like they are the kind of a इन्वेस्टमेंट, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कह सकते हैं, या फिर कोई ऐसा we can say the person we can say, or any institution we can say, who are providing you, who are guiding you on how to manage your wealth. हाउ टू मैनेज योर वेल्थ मतलब इसके अंदर क्या क्या आता है? मैनेज योर हेल्थ मतलब इसके अंदर आएगा कि आपको दे विल गोइंग टू गाइड यू ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एंड द इन्वेस्टमेंट. मतलब आपको फाइनेंशियली कहाँ पे पैसा रखना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे क्या अकाउंट ओपन करना चाहिए, देन अगेन कैसे टैली करना है, टैक्स को कैसे सेव करना है, टैक्स को कैसे बचाना है, देन अगेन कितना टैक्स लग सकता है, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है वगैरह. ओके. रिटायरमेंट के लिए व्हाट आर यू ऑल प्लानिंग, कि रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग है, आपको कितना पेंशन मिलना चाहिए एटलीस्ट. ओके. आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी को आप लीगली कैसे, मतलब बराबर है या नहीं, या फिर आपको कहीं और जगह पे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करने की जरूरत पड़ेगी, then only it will going to become legal. So this all kind of a services is being provided by the wealth manager. Okay. So what they are basically doing here, these managers are helping to manage your wealth. आपके पास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है, वो कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे ग्रो करना है. Sometimes what happen, like we people are only doing RD and FD because we know only this much. But there are many other services, many other financial instruments are available in the market. But as we don't have any knowledge, though we have knowledge, but we really don't know like what is the procedure for it. तो हम लोग वो नहीं करते हैं. And we are going just with the traditionally whatever we are doing, जो अपने माँ बाप करते थे FD वगैरह करना. So we are also trusting more on that. Okay. तो व्हाट इज ट्राइंग टू से हियर कि नए नए क्या इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपन हम लोग अपना पैसा बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में ये वेल्थ मैनेजमेंट, ये जो वेल्थ मैनेजर रहते हैं वो एडवाइस करते हैं.
तो ये बेसिकली किन के लिए काम करेंगे, लाइक विल दे गोइंग टू वर्क फॉर द कॉमन पब्लिक, और किसी बड़े रिच आदमी के लिए ही वो लोग काम करेंगे? तो दे विल गोइंग टू वर्क फॉर बोथ, दोनों के लिए भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी टाइम वेल्थ मैनेजमेंट का हेल्प कौन लेता है? दैट हेल्प विल बी टेकन बाय द रिच इंडिविजुअल, मतलब रिच इन द सेंस, फॉर एग्जांपल वी कैन से कि एक जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, दे आर ओनिंग सम स्मॉल बिजनेस, ऐसे लोगों के लिए वो काम करते हैं। देन अगेन किसी बड़ी कंपनी के लिए वो काम करेंगे, कंपनी को गाइड करेगी कि कहाँ पे क्या क्या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से डिमांड करना चाहिए, कौन आपको लोन दे सकता है करके। तो दिस वे एवरीथिंग, मतलब जिनको भी ऐसा लगता है, इवन यू पीपल, ओके, इवन यू पीपल इफ यू वांट कि नहीं, मुझे ऐसा कोई एडवाइजरी चाहिए कि जो मुझे गाइड करे कि मुझे कहाँ पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, तो उसके लिए इवन यू कैन हैव द wealth manager. Okay, so this all kind of a legal, financial, investment, then related to your estate, related to your legal matter, all this kind of advisory is being given by the wealth manager, and they are called as a wealth management. Is this clear to you, student? ये समझा आपको? समझा है नहीं समझा वेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है करके? यस। यस मैम। तो वेल्थ मैनेजमेंट अभी ये सर्विसेज कहाँ से मिलेगा? यस, यू कैन इवन आस्क एनी बैंकिंग पर्सनल, अगर वो उनके यहाँ पे है देन ओके। अदरवाइज भी आप लोगों ने एक चीज नोट की रहेगी कि बहुत सारे ऐसे अभी एजेंट है कि जो हमें हेल्प करते हैं, पैसा डिपॉजिट, जैसे एसआईपी क्रिएट करना है तो उसके लिए, शेयर्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बहुत सारे गाइडर रहते हैं। सो डेफिनेटली दे आर एक्टिंग एज अ वेल्थ मैनेजर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनीज रहेंगे ना, उनके लिए एक स्पेशली किसी को अपॉइंट किया जाएगा इसी चीजों के लिए, वेल्थ को मैनेज करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन हियर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सी, according to Investopedia, portfolio management is the art and the science of making decision about investment mix and policy, matching investment to objectives, asset allocation for individual and the institution, and balancing risks against the performance. Somewhat like your wealth management only, लेकिन यहाँ पे एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन योर इन्वेस्टमेंट, कि क्या इन्वेस्टमेंट मिक्स एंड पॉलिसी करना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव है किसी का, किसी फर्म का, किसी कंपनी का, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। This is what their main point we can say. Then again, whatever assets are there available with the मतलब जो भी asset रहेंगे वो कैसे allocate करने हैं इंस्टीट्यूशन में या फिर किसी इंडिविजुअल्स को, कुछ क्या रिस्क आ सकता है और उस रिस्क के लिए हमें क्या पहले से ही प्रिकॉशन लेना चाहिए from the investment point of view. So this all kind of a guidance is being given here. Okay, portfolio management is all about determining strength, weakness, opportunities, and the threats in the choice of debt versus equity, domestic versus international, growth versus safety, and many other trade-off encountered in the attempt to maximize return at a given appetite for a risk. So generally, portfolio management, what we can say, they are working in a many angle, but their main objective is what here, कि suppose if any kind of a प्रॉब्लम अकर इन दैट इंस्टीट्यूशन, देन हाउ टू रिजॉल्व इट, उसको कैसे रिजॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी मिक्स करना चाहिए हमें, मतलब क्या क्या पॉलिसी लेना चाहिए कि जो हमारा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ओके, तो दिस वे आइडिया बोलते हैं ना हम लोग कि स्ट्रैटेजिकली प्लान करो, एकदम चालाक माइंड से प्लान करना है कि अच्छा वो पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, अगर ये कंपनी में ऐसा कुछ हो जाता है तो वो पॉलिसी को मैं कैसे इसके अंदर यूज कर सकता हूँ, तो वो पॉलिसी मुझे कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। सो दैट वे वी शुड मेक द इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो ये सब स्ट्रैटेजी वहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता है। So portfolio management is further on the following types. First one here, active portfolio management. As the name suggests, in an active portfolio management service, the portfolio managers are actively involved in buying and selling of securities to ensure maximum profit to individual. पोर्टफोलियो मैनेजर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे आपका अगर पैसा आप लोग उनके पास दे रहे हैं
जैसे मैंने आपको बोला कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एसआईपी कर रहे हैं आप लोग या फिर शेयर मार्केट में, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, यू आर जस्ट गिविंग दैट मनी टू दैट पर्सन, तो वो आपके लिए क्या करेगा, कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि उसने एक महीने में ये सिक्योरिटी में ट्रेडिंग कर लिया तो उसके बाद में वो देखेगा ही नहीं, देखते क्या, ऐसा नहीं रहेगा. एवरी डे ही विल गोइंग टू ऑब्जर्व लाइक वेयर ही हैव टू स्पेंड द मनी. Okay, so these are all happening in active portfolio management. And then the passive में क्या है? In a passive portfolio management, the portfolio manager deals with a fixed portfolio designed to match the current market scenario. फिक्स पोर्टफोलियो डिजाइन मतलब क्या रहेगा कि ऑलरेडी उनको स्टेप्स दिया रहेगा, उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग उन्हें कैसे कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये ऑलरेडी जो जिस इंडिविजुअल्स के लिए या फिर जिस कंपनी के लिए वो लोग काम कर रहे हैं तो उनके लिए वो करेंगे. मतलब इट इज ऑलरेडी डिटरमाइन है. अभी एक्टिव में क्या हो रहा था, एक्टिव में जैसे मार्केट अप एंड डाउन होते तो वैसे इमीडिएटली वहां पे वो ट्रेडिंग करेगा सिक्योरिटीज में. लेकिन पैसे में क्या रहेगा कि नहीं, कंपनी को क्या चाहिए, अच्छा यही चाहिए ना, ठीक है चलो उसके अंदर ही मैं इन्वेस्टमेंट करके देता हूँ करके. So that is what we are calling as a passive portfolio management. Then the discretionary portfolio management services. In discretionary portfolio management services, an individual authorizes a portfolio manager to take care of his financial needs on his behalf. The individual issues money to the portfolio manager, who in turn takes care of all his investment needs, paperwork, documentation, billing, and so on. In discretionary portfolio management, the portfolio manager has full rights to take decision on his client's behalf. मतलब बस पैसा देना है. आई थिंक ये भी ऑलमोस्ट सेम होगा जब मैंने आपको एक्टिव में बोला था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि टोटल ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन ओनली. मतलब आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो और उसको ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट कर रहे हो कि इसको मैं जो भी पैसा दे रहा हूँ ये एकदम बराबर जगह पे डालेगा, बराबर जगह पे इन्वेस्टमेंट करेगा, मुझे वो कुछ ना कुछ रिटर्न ही देगा. इतना ही नहीं तो मेरे बिहाफ में उसको अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन फिल करना है वगैरह तो वो भी उसको मैं करने के लिए अलाउ करूंगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड योर डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देन द नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज. In non-discretionary portfolio management services, the portfolio manager can merely advise the client what is good and bad for him, but the client reserve full right to take his own decision. मतलब नॉन डिस्क्रिशनरी में मतलब बस वो यही करेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन आगे का प्रोसीजर बस यहाँ पे जो क्लाइंट रहेगा वही करेगा. यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर जस्ट सजेशन दे रहा है एंड बाकी का काम वो क्लाइंट को करना है. सो दैट इज योर non-discretionary portfolio management. Now, what are the objectives of portfolio management? It is aptly put as the customization of the investment needs catered by the portfolio manager as per the defined requirement. Portfolio management helps in providing the best options of investment to individual as per their defined criterion of their income, budget, age, holding period, and risk-taking capacity. This is mainly done by the portfolio manager who understands the investor financial needs and accordingly suggests the investment policy that would have maximum returns and minimum risks involved. Aptly put, it is risk reduction through diversification. This is method preferred by those who believe in having liquidity in investment so that one can get the money back when they need it. Some of the portfolio management scheme are also done for tax saving purpose. It helps the investors maintain the purchasing power. The objective of portfolio management मतलब क्या समझे यहाँ पे कि the portfolio manager will going to go as per the requirement of the customer. Okay, क्या जरूरत है उनको, उनके मतलब उनको किस वे से चाहिए, उनको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बढ़ाना है या वो टोटली लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, उनको इमिडिएटली कितने पैसे की जरूरत है और वो उतना पैसा कैसे मैनेज हो सकता है, कितना कितना बड़ा रिस्क लेना चाहिए. सो एज पर दैट. ओके, बट यहाँ पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज व्हाट कि पहले वो पूरा देखेगा कि मतलब ये आदमी का बजट क्या है और उसका एज कितना है, उसका कितना इनकम आता है करके, उसको कैश कैसे चाहिए, क्या मतलब जो भी पैसा वो डिपॉजिट कर रहा है उसको वो लिक्विडिटी फॉर्म में जल्दी मिलना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए या फिर कुछ और अलग वे से चाहिए करके उसको पैसा, उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब वो रिस्क लेने के लिए रेडी होगा कि अगर थोड़ा बहुत लॉस होता है तो. ओके, so this way it means what here,
each and everything has been decided. So I think it is somewhat like your wealth management only, the portfolio management. इतना कुछ ज्यादा differences है ही नहीं. Wealth management में क्या हो रहा था कि like he was even planning for your estate, your property and their documentation. But here on the portfolio management, we are basically talking with the investment. मतलब हम लोग बस investment के बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे रिस्क को कम किया जा सकता है. Only from that point of view, the portfolio managers are thinking here. Is this clear to you, student? What is wealth management and what is portfolio management? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. यस मैम। ठीक है, ये एनआरआई रेमिटेंस भी बहुत कम है, ये भी कर लेते हैं हम लोग. चलो इतना ही छोटा सा ही पैराग्राफ है. ठीक, a remittance, NRI remittance, okay. A remittance is the fund and expatriates sends to their country of origin via wire, then mail or online transfer. This peer-to-peer transfer of fund across the borders are economically significant for many countries that receive them. Remittance to India are money transfer from non-resident Indian employed outside the country to the family, friends or relative residing in India. Okay. India is the world's really leading receivers of remittances. So what do you understood here? यहाँ पे क्या हो रहा है कि उन्होंने कहा कि इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आता है. फर्स्ट थिंग यू शुड क्लियर लाइक व्हाट इज रेमिटेंसेस. रेमिटेंसेस मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी और कंट्री के थ्रू हमारे पास पैसा आ रहा है. तो दैट कैन बी थ्रू लाइक वी कैन से यहाँ पे उन्होंने वायर लिखा हुआ है. दैट कैन बी थ्रू द मेल और दैट कैन बी थ्रू द ऑनलाइन ट्रांसफर, वट एवर वे, बट वी आर गेटिंग दैट मनी. और उन्होंने कहा है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं. मतलब इसका मीनिंग ये होगा कि हमारे लोग बहुत सारे फॉरेन कंट्री में काम करते हैं और वहां से उनके फैमिलीज और रिलेटिव के लिए जो पैसा आता है उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है. तो वो बहुत ज्यादा अपने इंडिया में आ रहा है एज कम्पेयर विद द अदर कंट्री. मतलब इंडिया के लोग बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं. So under the Foreign Exchange Management Act, that is FEMA of 1999, non-resident Indians, that is NRI, and the person of Indian origin, PIO, can open and maintain three types of account, namely non-resident ordinary rupee account, non-resident external rupee account, then foreign currency non-resident bank account, FCNRB account. Okay, so they can open this kind of account. जो NRI रहता है, देखो NRI बेसिकली कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं. मतलब जो बॉर्न से इंडिया में हुए हैं बट दे आर वर्किंग इन द फॉरेन कंपनी, लेकिन उनको इंडिया में अपना अकाउंट ओपन करना है, लेकिन वो अभी फिलहाल तो फॉरेन कंट्री में है. तो वो लोग क्या कर सकते हैं? सो दे कैन ओपन द NRI अकाउंट. से NRI के बेसिकली उन्होंने 3 यहाँ पे अकाउंट बताए हैं. So these are like non-resident नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडियन एंड नहीं, यहाँ पे क्या, हाँ 3 अकाउंट है. नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट एंड देन फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंसी अकाउंट है. तो रेमिटेंसेस मतलब क्या है यहाँ पे? एनआरआई एंड रेमिटेंसेस मतलब क्या होता है कि जो भी फॉरेन कंट्री में है वो वहाँ पे कुछ अर्न करता है और उनका जो अर्निंग पार्ट रहता है वो इंडिया में जो उनके रिलेटिव्स है उनको वो मतलब भेजता है. ठीक है. तो वो ट्रांसफर करने के लिए कौन से टाइप के अकाउंट उनके लिए ओपन किए जाते हैं. दैट वी हैव सीन द 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट दे आर ओपनिंग. सो दिस इज कॉल्ड द एनआरआई रेमिटेंसेस. इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? अभी एनआरआई रेमिटेंस से मुझे बताओ, ये एनआरआई फिर इंडिया में आके डिपॉजिट करेगा ऐसा रहेगा या इट विल बी ऑल हैपन ऑनलाइन ओनली? व्हाट डू यू ऑल से? ये पूरा ऑनलाइन रहेगा? क्या कहोगे आप? ऑनलाइन। Yes, it will be totally online. Okay, so this is all about this. Now then the technology in banking and advantages वगैरह we will going to state on the next session. So today we have seen the 3 points here: wealth management, portfolio management, and the NRI remittances. Okay, so we start looking for your this thing, or you can say project के बारे में हम लोग भी बात करेंगे, ग्रुप बनाएंगे. And till that time, if possible, Alia is there. Alia, can you please take the screenshot of attendance? अगर टाइम मिला तो हम लोग कर लेते हैं अटेंडेंस, अदरवाइज यू जस्ट सेंड मी द स्क्रीनशॉट. ओके. यस आलिया, आई कैन नॉट हियर यू.
इतना नहीं। Okay, see, you people can see the screen here. Yes, Priyanka, you were supposed to give me your group member name, right? Yes, ma'am. हाँ, okay. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो कितने कितने लोगों का हो चुका है. So now, Priyanka, what is your roll number? This is your 7th group, huh? 29, ma'am. 29, okay. Okay, Priyanka, tell me the next one. Ma'am, Wimblish, 27, 20, I guess 27. पाल Wimblish 28. कौन कौन है इसके, यही ग्रुप में से कोई है क्या? नहीं मैम, नीचे आई गेस ये एक है बस. मैम रोल नंबर 18. क्या? हाँ, नेक्स्ट बोलो. हाँ मैम, तनवीर और तफसीर. तनवीर, 35 36 ना? नहीं. यस मैम. 36 37. मैम रोल नंबर 18. हाँ, रुको. तनवीर एंड तफसीर का हो गया. रोल नंबर 18 विनय. ओके मैम नो. हाँ, अच्छा नो, ठीक विनय है. नहीं है. अच्छा ठीक है, हाँ उसको अलग से देना है. हाँ ठीक है. यू टेल मी व्हाट इज हु इज द नेक्स्ट ईयर. सूरज. रोल नंबर बता. 24. मैम मल्ला रोल नंबर नहीं था. मल्ला. यस यस मैम. ओके. यस मैम. हाँ, नेक्स्ट इसका ग्रुप फॉर्म हो चुका है. व्हाट इज योर टॉपिक एंड नेम? मैम टॉपिक अभी चूज नहीं किया, बस स्टिल मैं बता दूंगी आपको. हाँ, किसी और ने चूज किया अभी तक टॉपिक? आई थिंक रीना एंड रेनू का बाकी था, वो ग्रुप का बाकी है. आलिया का ग्रुप का बाकी है. आरती के ग्रुप का बाकी है. एंड प्रियंका के ग्रुप का बाकी है टॉपिक का. अभी चलो, ये कितने बाकी है? जतिन इज देयर. जतिन तो लेकिन ग्रुप में नहीं है. हाँ यस मैम. एक्चुअली यू वर देयर इन वन ग्रुप, बट वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो वी केप्ट यू असाइड. अगर तुम्हें कोई ग्रुप फॉर्म करना है देन यू कैन डिसाइड. कोई और 5 लोगों को मिलके कोई ग्रुप फॉर्म कर सकते तो वैसे. हाँ मैम, कौन से भी ग्रुप पे डाल दो, मुझे चलेगा. ओके, चलेगा. यू विल कोऑर्डिनेट विद देम. मैं आपको ग्रुप मैम 19. 19. अली अब्बास, आपको कौन सा आपने ग्रुप बनाया है? यस यस अली. नहीं मैम. ओके. रोहिदास, इन लोगों में से कौन कौन अवेलेबल है? डाली, रोहिदास, ओमकार, विनय एंड खान अली अब्बास. ये 5 लोगों में से अभी कौन कौन प्रेजेंट है? डाली इज देयर. मैम हमारा ग्रुप बना था ना 4 मेंबर्स का. किसका था? डाली का. यस मैम. बता कौन था लीडर? इसमें मैं, निक्की और मनीषा थे और मरियम. हाँ वो वाला ना. रुक रुक रुक, वो वाला किसका ग्रुप था वो? रुको, ये तो देखो. आलिया नहीं, ये नहीं. अवंतिका वाला भी नहीं. ये भी नहीं. किधर है तुम्हारा ग्रुप? मनीषा का लेकिन नाम तो लिखा हुआ था. वो नहीं. यस मैम, दिया नाम अभी नहीं दिख रहा है. नहीं, चलो चलो फिर से बता. मैं भी लाइट वगैरह चला गया रहेगा तो मेरा रह गया होगा. चलो बोलो, कौन कौन थे डाली तुम्हारे ग्रुप में? याद आ रहा है? यस मैम. हाँ बोलो. निक्की, मरियम, मनीषा.
एक मिनट यार, डाली करके लिख देती हूँ मैं पहले। हाँ, डाली के बाद में पूरी मनीषा ना। हाँ करे, मनीषा का भी देखते हैं यहाँ पे येलो में है या नहीं। पी पी पी। हाँ नहीं है, देख येलो में इसका इधर। उसके बाद में बोलो, पूरी मनीषा के बाद में। निक्की तिवारी। निक्की का रोल नंबर टी 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 किधर है? निक्की तिवारी, ओके। तुम लोग का टॉपिक भी डिसाइड हुआ था क्या? यस मैम। क्या था टॉपिक? एक मरियम मैम है। मरियम में टॉपिक, ये कौन सा टॉपिक है? No, ma'am. Overview of banking मैम industry. 19। अच्छा, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग, ओके। मरियम भी, ये 4 लोगों का एक ग्रुप बना था तुम लोगों का अभी तक। यस यस मरियम। ओके, चलो ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग तुम लोगों का हो गया। हाँ, नेक्स्ट कौन है? 19। अली, आपका ग्रुप बना है क्या बेटा? नहीं मैम। हाँ, मैं क्या पूछ रही थी, रोहिदास, ओमकार, विनय एंड अली, इनमें से कोई अभी है प्रेजेंट? यस, रोहिदास ओमकार में से कोई है क्या? कोई भी नहीं है। आलिया जस्ट चेक एक्सक्यूज करो। मैम। हाँ विवेक, मैम बोलो 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 विवेक। मैम 1 to 5 में जतिन को ले लेंगे हम लोग। किसमें? 1 to 5 रोल नंबर में। 1 to 5 में, बट इट इज ऑलरेडी देयर ना, मतलब जतिन एडिशनल हो रहा है ना उधर। उसमें रख, एक को निकाल देंगे हम लोग। किसको निकालोगे? हाँ, मैम दीपिका। दीपिका। दीपिका को निकाल देंगे। अभी वो है नहीं। पहले दीपिका को ये किया, बाद में ये, चलो देखते देखते, विल सी लेटर ऑन अबाउट योर ग्रुप। यस, नाउ द नेक्स्ट वन बताओ मुझे। अभी देखो इतने ही लोग बाकी हैं यहाँ। इसमें क्या क्या है? एक तो जतिन, निकिता, देन रोहिदास, ओमकार, विनय, अली अब्बास, वसीम, कौशिक, साफिया, आदित्य, देन फिरोज, नूरजहां, समीर, सबा, शहनाज, सोडा, अपेक्षा। These many people are there left for this project work. ओके, क्या करोगे? मैं बना दूं अपने एंड तक, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो लोग बोलो हाँ हम लोग है प्रेजेंट करके, उसके अकॉर्डिंग जाते हैं फिर। चलो स्टार्टिंग से करते हैं। निकिता इज देयर। निकिता, निकिता है? No, ma'am. निकिता नहीं। नो मैम। रोहिदास है? रोहिदास भी नहीं दिख रहा है ना। फिरोले रोहिदास ऑल्सो नॉट देयर। ओके, ओमकार, ज्यादा ओमकार है? ज्यादा ओमकार दिख रहा है? देखते जाओ जरा, आलिया, निक्की, तुम लोग जरा देखते जाओ, बताओ मुझे। आरती, ज्यादा No, ma'am. ओमकार नहीं है? है. नहीं। ओके, नेक्स्ट है विनय इज देयर। विनय अभी आया ना, ठीक है, रुको विनय को देखते हैं। और विनय है और अली है, ये दोनों है। ओके, ठीक है, ये दोनों का हम लोग कर लेते फिर फॉर्म। वसीम इज देयर। वसीम खान, वसीम इज देयर। वसीम है? देखो जल्दी बताओ मुझे, दिख रहा है वो? No, ma'am. ओके, वसीम इज ऑन देयर। कौशिक, कौशिक, मोमिन, साफिया एंड आदित्य, इनमें से कोई है? नहीं है। No, ma'am. नहीं है. फिरोज एंड नूरजहां में से? सैयद फिरोज एंड सैयद नूरजहां, नहीं दिख रहे। Ma'am, फिरोज सैयद है. फिरोज इज देयर, ओके। नूरजहां नहीं है ना। समीर, सबा एंड शहनाज? हम्म, No, ma'am. नहीं है. ओके। सबा भी नहीं है। शेख सबा मैंने देखा था किधर से। शेख सबा भी नहीं है। ओके, मैम हमारा टॉपिक का नाम लिख लो ना मैम। शीतल ना, हाँ रुक जा। शहनाज एंड अपेक्षा में से कोई प्रेजेंट है?
नहीं कोई नहीं। अच्छा, ये किसका ग्रुप का नाम लिखना है मुझे? शीतल मैम, रीना, रेनू, कविता। ओके, ये वाला। हाँ चलो बोलो। टाइप्स ऑफ बैंकिंग। ओके, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। आई एम फॉर्मिंग वन ग्रुप नाउ हियर। आप लोगों को बस थोड़ा कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ओके, so as Nikita is not there, we are waiting. See, Vinay and Ali Abbas both are there, 18 and 19. तो आप दोनों का तो कांटेक्ट हो जाएगा एक ही ग्रुप में हो तो। यस यस, विनय एंड अली अब्बास, बॉडी ऑल से दोनों क्या बोल रहे हो? कर लोगे? विनय एंड अली अब्बास किधर है? चले गए, वो गायब हो गए। हेलो। हाँ विनय, बोल बोल। हाँ मैम, कर लेंगे। और ये अली अली का क्या कहना है? अच्छा विनय, एक काम करना, सुन, इधर है ना, मैं कुछ लोगों का नाम लिख रही हूँ तुम्हारे ग्रुप में, तो थोड़ा उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर लेना। जैसे कि तुम लोग यही ग्रुप में आते हो, तो विनय को दिया, अली अब्बास को दिया, देन वी विल टेक रोहिदास एंड निकिता आल्सो इन योर ग्रुप। चलेगा? मैनेज हो पाएगा? ओके मैम। देखो मैम। रोहिदास। हाँ कौन? आलिया। यस मैम। हाँ बोलो। मतलब टॉपिक का नाम लिख दीजिए ना मैम, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एक मिनट एक मिनट। हाँ ये देखो विनय, ये सारे ग्रुप का नाम लिख के स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ठीक है, हाँ इनका स्क्रीनशॉट ले लो विनय, इस बार तो कौन कौन लोग तेरे ग्रुप में समझ में आ जाएगा। टेकन? यस विनय। विनय का स्क्रीनशॉट लिया तो मैं आगे बढ़ती हूँ फिर। ओके चलो, नेक्स्ट किसका लिखना है मुझे? कौन से ग्रुप का लिखना है? आलिया के? हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चलिए। मैम मेरा ग्रुप कौन सा है मैम? कौन सा? किसका किसका? मैम जतिन मैम। जतिन का यस ना? जतिन का विल सी। देखो मुझे देखो अभी कितने लोग बाकी है। बस वन एंड वसीम बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर एक बाकी है। और भी स्टूडेंट आएंगे अभी, और एक ने एडमिशन तो लिया हुआ, 10 11 एंड यू 12। मैम जतिन आई थिंक फिलहाल के लिए यू कैन बी विद दिस ग्रुप ओनली। ये आरती लोगों का जो ग्रुप है ना, उनके साथ ही रहो। ठीक है, मैं आपका नाम यहाँ से ये कर लेती हूँ। चलो एक एक इसमें 6 को अलाउ कर देते हैं, नो इशू। ओके, यू बी विद देम ओनली। चलेगा क्या? हाँ मैम, प्लेस कौन सा भी खाली होगा रिप्लेस कर देंगे। हाँ ऐसे ही करो तुम लोग, प्लेस करो रिप्लेस करो, उतना ही काम करो, है ना? यस। और नहीं मैम, उसमें ज्यादा ज्यादा उसमें हो गए। सो वही, अगर कौन सा प्लेस खाली होगा तो मैं हाँ तो रिप्लेस हो जाऊंगा। तुम लोगों का जो ये रहेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंटेशन रहेगा ना, वो टॉप। सारे ग्रुप में से बेस्ट होना चाहिए। ओके, तुम लोगों में ज्यादा मेंबर है, पीपीटी एकदम सुपर होना चाहिए, एकदम मस्त। ठीक है। वो मैम, अभी उन लोग जो कैप्टन रहेगा उन लोग डिसाइड करेंगे, मेरे से मेरा पीपीटी हैंडल कर लेगा। जतिन कैप्टन है मैम। जतिन कैप्टन भी बन गया, अभी आया नहीं कि कैप्टन बन गया वो, है ना? इतना नहीं यस मैम, मैम। मेरा मेरा दूसरा स्टडी है मैम, मुझे नहीं होगा। कैप्टन मैं नहीं हूँ। जतिन ही है। कैप्टन कोई भी रहने दो, तुम लोग डिसाइड करो और मुझे अच्छा प्रोजेक्ट लाके दो, बस यही है। हाँ। ठीक है, तो कैप्टन वैप्टन ऐसे है ना, छोटे बच्चों के ऐसा झगड़ा मत करो तुम लोग अभी। ओके चलो फटाफट नहीं करो। नहीं मैम, मैं सच में मैं टाइम नहीं दे पाएगा, इसलिए आरती को बना दो। मैं मुझे That's दूसरा भी that वर्क है मैम। you people decide among yourself who will do that.
Okay, chalo first 1 Okay. to 10. Yes, Alia, please help me out for the roll numbers. 1 to 10 में I can see roll number 1 is present, and then I can see roll number 5, 7. इसके अलावा और 3, अच्छा 3 भी है. विवेक is there? विवेक, तुम लोग रोल Yes, नंबर ma'am. नहीं लिख रहे हो. रोल नंबर लिखो ना. 1 2. मैम रोल नंबर 2. हाँ 1 2 3 को देखा, देन 5 को प्रेजेंट दिया. उसके बाद में कौन है? 7 अवंतिका को दिया. और कौन है? मैम 6 भी प्रेजेंट है. हाँ तुम लोग ऐसे ही रहो, कोई अपना रोल नंबर नहीं लिखो तो मुझे कैसे दिखेंगे तुम लोग. और कोई है 1 to 10 में? मैम मैं दूसरे का रोल नंबर बताऊंगी. ओके ओके, कोई है? नहीं है. चलो 11 to 20 में बताओ फटाफट मुझे. 11 to 20 में मुझे यहाँ पे 13 15 ही दिख रहे हैं. और कोई? 18. हाँ 13 को दे रही हूँ मैं, 15 को दे रही हूँ मैं. और कौन है? कोई ये दिख रहा है इधर. 13 15 ही. 18. 18. ओके. विनय, यस विनय इज देयर. ओके विनय इज देयर. अली अब्बास भी है ना? अली अब्बास क्यों नहीं बोल रहा है? मेजबिन इज ऑल्सो देयर. ओके ये हो गया. देन 21 to 30 में बोलो फटाफट. 21 to 30 में आई कैन सी ओनली 22 and 29. ये भी तुम लोगों ने लास्ट ईयर का ही नंबर लिखा हुआ है लगता है. कैसे हो तुम लोग? 30 आई कैन सी. अमित है. हाँ अमित को दिया मैंने. और कौन बाकी है बोलो. चलो जल्दी जल्दी जल्दी. 19 को 19 दिया दिया दिया. 19 को दिया. 21 to 30 में एक ही लड़का प्रेजेंट था, अमित ही था, बाकी कोई नहीं है. प्रियंका इज देयर. ओके बोलते जाओ ना, फिर बोल क्यों नहीं रहे तुम लोग. और कौन है? मैम आई थिंक महजबीन का 20 रोल नंबर है. हाँ मेजबिन ने वही गलत लिखा हुआ है. मेजबिन का दिया मैंने, 20 को तो दिया मैंने. सूरज वगैरह नहीं है ना, प्रेरणा भी नहीं है, कौशिक नहीं है. ओके चलो